آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ وزیر اعظم سے فوری استعفے، ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ، جنوری میں لانگ مارچ اور ملک گیر احتجاج کا اعلان، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحادی ڈھانچہ تشکیل، میثاق پاکستان کی تیاری کے لیے کمیٹی قائم، کثیر الجماعتی کانفرنس کا اعلامیہ جاری، رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ صدارتی نظام کے ارادوں کی مذمت، 1947 سے لے کر اب تک کی تاریخ کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ٹروتھ کمیشن کی تشکیل، سیاسی انتقام اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار ارکان کی رہائی پر زور، پنجاب میں بلدیاتی ادارے ختم کرنے پر تنقید، آٹے، چینی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ، کثیر الجماعتی کانفرنس کے اعلامیے کے اہم نکات۔ ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کے دن اب گننے شروع ہو جائیں گے۔ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے اور طے ہو گیا کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، یہ طے ہو گیا۔ ڈیموکریٹک موومنٹ اپنا کام شروع کرنے کی موجودہ حکمرانوں کا مزید اقتدار میں رہنا ملک کے لیے خطرناک ہے۔ شہباز شریف کا اظہار خیال، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی اور جمہوری آپشن استعمال کریں گے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ مناسب وقت پر ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ انتخابات ہائی جیک کر کے چند افراد کو اقتدار دینا بددیانتی، عوام کے حقوق پر ڈاکہ سنگین جرم، پاکستان جمہوریت سے محروم، ملک تجربات کی لیبارٹری بن گیا، دھاندلی کے ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا، اپوزیشن سیاسی انتقام کا نشانہ، جو نیب سے بچ جائے وہ ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں کٹ پتلی حکومت کا کشمیر میں فائدہ اٹھایا، ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ نواز شریف کا کثیر الجماعتی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب۔ منی گالا میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فورن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے، جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ علیمہ خان صاحبہ جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں، بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا۔ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں، ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے روپیوں سے پاکستان بچانا ہے، اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے۔ صرف حکومت گرانے نہیں، ملک بچانے آئے ہیں۔
मौजूदा हुक्मरानों को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे। वजीर आजम सिलेक्टेड, तब्दीली सरकार के हथकंडे नाकाम होंगे। तकरीर के बाद पहला बंदा होगा जो जेल जाएगा। आसिफ अली जरदारी का APC से खिताब। मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे। और हमने सुना कि और जो बाद में प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे मिस्टर जमात जो आपका MMA में साथ है, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब की मुदाखलत, लिंक डाउन कर दिया गया। तकरीर बराह रास्त नशर ना होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज। JUIFA की दरख्वास्त पर इजलास इन कैमरा किया गया। शहरी रहमान का जवाब, हमने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान मौक़िफ़ पर कायम। APC का मकसद हुकूमत पर दबाव डालना, सिर्फ चंद रहनुमा जमा हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में सब कुछ नॉर्मल है। नवाज शरीफ के बयान में कोई बात नई नहीं। लीगी कायद हशाश बशाश बाहर बैठकर कानून का मुंह चढ़ा रहे हैं। साबिक वजीर आज़म मुल्क के खैर खां हैं तो अरबों की जायदादें बेचकर पाकिस्तान आए। शिबली फराज का रद्द अमल। इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है 6, 7, 8, 10 दिन से। जेल इन लोगों का मुकद्दर है और केसेस इनकी तलवार की तरह इनके ऊपर लटक रहे हैं। और ये सारे भगोड़े जो लंदन में जमा है, जो इतनी बड़ी तकरीर नवाज शरीफ ने की है कि वोट को इज्जत दे, कोर्ट को भी इज्जत दो। नोट को इज्जत देते हो, नोट को इज्जत देते हो, फिर कहते हो वोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। सारे भगोड़े लंदन में जमा। FATF कानून बनने के बाद जेलें इनका मुकद्दर हैं। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान मुल्क का 5वां सूबा होगा। आइन के आर्टिकल 1 और 51 में अहम तब्दीलियों का फैसला। आर्टिकल 257 और 258 भी तब्दील होंगे। MQM का 24 सितंबर को कराची, 4 अक्टूबर हैदराबाद और 11 अक्टूबर को मीरपुर खास में मार्च का ऐलान। नए सूबे का मुतालबा आईनी है। शहरी इलाकों के अवाम वोट से मायूस हो गए तो रोड फैसला करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। M8 शाहराह की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। प्रोजेक्ट से इन इलाकों में एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस की दर्जनों टीमों का ज़बानी जमा खर्च, कारकर्दगी 0/0। मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। सिर्फ रिश्तेदारों की पकड़ धकड़। जेर हिरासत मुल्जिम शफकत से तफ्तीश जारी। पानी अचंगे गड लाई दो, साहब भलो पानी ते पूछा दो, सी पियूं अवा उते वेठा गलीबी ते बुडी विया, सी बुडी विया, सी गलीब बुडी विया, माल मली विया, वो माल छडे दिया, अटा मांगो थी विया, गरीबां दा जुल्म थी विया। पहले आ शुरुआत में मकड़ आया लड़ियों कयाम। महंगा आटा, गरीबों पर जुल्म। बारिशों के मुतासरीन को टेंट में लेना राशन। मवेशी मर गए, घर तबाह, फसलें डूब गईं। लोग रो रो कर थक चुके। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठे हैं। सांगढ़ में जहरीले पानी से मुर्गे की मौत पर हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके।
बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 26 निकात पर इत्तेफाक हुआ, एलामिया जारी किया जा चुका है। इस APC के बाद मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ मीडिया से मुखातिब हुए। वजीर आजम से फौरी इस्तीफे और मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया गया। जनवरी में लॉन्ग मार्च और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहादी ढांचा तश्कील दे दिया गया है। मीसाक़ पाकिस्तान की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया कि अपोजिशन की कमेटी इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत की समत का तायुन भी करेगी। ये भी कहा गया कि इत्तेहाद गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात दिलाने के लिए मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाएगा। सियासी इंतकाम का शिकार और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार अपोजिशन रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया गया है। ना तजुर्बाकार हुकूमत ने CPAC को खतरे में डाल दिया, ये भी कहा गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। वजीर आजम इमरान खान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। 7 निकाती एक्शन प्लान सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मुल्क गिर एहतजाज मरहलावार होगा। जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक़द और रैलियाँ निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। APC में हुकूमत को घर भेजने के लिए पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एक्शन प्लान के मुताबिक वकला, ताजिरों, किसानों, मजदूरों, तलबा, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को एहतजाजी तहरीक की सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो अपने काम का आगाज कर रहे हैं। एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे, मुत्तहिद होकर पूरी ताकत से तहरीक चलाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इनमें से जो भी पीछे हटे उसका मुहासबा किया जाए। हमारा जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हम कल से अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम एक दिन चैन से नहीं बैठ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे यही जमातें ने आपको MRD तहरीक दिखाए थे और ARD का मूवमेंट चलाए थे, अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए निकल रहे हैं। हम सब यूनाइटेड भी है और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते, तो आप हमारा हिसाब लें। सीनियर लेवल कमेटी है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहाँ हमने और कब हमला करना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम को मुल्क के मफादात का शऊर नहीं, हुकूमत का मजीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरनाक है। उन्होंने अज़राह तफन्नुन ये भी कहा कि मौलाना से ये भी तय पा गया है कि अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम। जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है वो ना मामलात फ़हम है, ना वो पार्लियामान में जो पार्टीज़ हैं उनको साथ लेकर पाकिस्तान के जो अजीम तर मफादात हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कोविड है या दूसरे जो मामलात हैं, कतन उनको शऊर नहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो बेस्ट
इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जाए। तो हमने आज ये पूरी मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि यह हुकूमत का मज़ीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरे से खाली नहीं। मौलाना साहब से बात हो गई है और तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, ये तय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जमहूरियत से महरूम है। इंतखाबात हाईजैक करके चंद अफराद को इक़्तिदार देना बददियानती है। जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन्हें हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी जिद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। वो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। ऑपोजिशन के लोग जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं, जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। अलीमा खान साहिबा जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, उनके बैरून मुल्क असासों के ज़राए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के ज़ाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? जमहूरियत को कमज़ोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान